Turn your camera on. Slow class. Yes. Accounting period concept. See, it is related to going concern concept. Going concern concept says that the business will run for an infinite period of time. Okay. So we have to ascertain profit or loss, whatever, in our business. But we cannot wait for so long. We cannot wait for so long to ascertain net profit or net loss. There has to be some period, and that period is known as accounting period. This accounting period of 12 months, 12 months, 1st April to 31st of March, 1st April to 31st of March, when accounts are maintained and net profit and loss of the firm is ascertained, balance sheet is prepared, is known as accounting period concept. Accounting period concept says that the business need to calculate profit and loss at regular intervals. At regular intervals. It should not be that कि बहुत टाइम हो गया और आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपने कैलकुलेट ही नहीं किया है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है फर्म को, हाउ मच इज द प्रॉफिट एक्चुअल और हाउ मच इज द लॉस. सो यू शुड बी, इट शुड बी वेरी क्लियर that what is the profit and what is the loss. Profit and loss कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फाइनेंशियल पोजीशन अपनी फर्म की पता करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. So it is very clear that accounting period will be of 12 months. 12 months. It will be from 1st April to 31st of March. It is known as accounting period, accounting year, financial year. It is also known as financial year. I hope it is clear. The entire life of business is divided into this time interval of 12 months. 12 months. Okay. Everywhere, all business entities prepare accounts according to this time period only. 1st of April to 31st of March, everywhere. Then there is dual aspect concept. DUAL, dual aspect concept. According to this concept, all the business transactions are going to affect two accounts. Means to say, every business transaction has a twofold effect. It is recorded as having twofold effect. Twofold effect. It is recorded in the books of account having a dual aspect. Every business transaction will affect at least two accounts minimum. It may affect more accounts also, but always every business transaction affects two accounts, one of which is debited and the other one is always credited. One account will be debited and the other account will be credited. It is also known as the system. The system of recording entries in this way is also known as double entry system. Is also known as double entry system.
The recording of transactions according to dual aspect is also known as double entry system. सर बुक का पेज नंबर कौन सा है? Is this लोग book? This is chapter number 3 beta. 3.7. Page number 3.7. Page number 3.7. जो हमारी बुक है. And whenever any business transaction takes place, it always holds the accounting equation good. Accounting equation होती है, उसको नोट कीजिए. Assets is equal to liabilities plus capital. Assets are always equal to liabilities plus capital. Sum of liability plus capital. A is equal to L plus C, liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities plus capital. Then next is objectivity concept. Objectivity concept. Objectivity concept states that all the business transactions should be recorded in an objective manner, and there should not be any bias, personal bias in it, no favoritism, no misappropriation of any funds, no cheating, in the sense it should be free from all type of misappropriations. And for that to happen, it should be supported by verifiable documents. It should be supported by verifiable documents. Such as vouchers, cash memos, bills. Because when these documents are there, we have the proof of the transaction. आप बाजार से मान लीजिए सामान लेते हैं कोई, तो अगर आपने उसके साथ उसका बिल ले लिया है, तो आपकी गारंटी वारंटी जो भी आपको मिली होगी, वो आप जो है बाद में क्लेम कर सकते हैं. अब आपके पास उसका बिल ही नहीं है, बाद में तो शॉपकीपर ये कह सकता है कि भाई इन्होंने तो ये सामान हमसे लिया ही नहीं, इट इज नॉट ऑफ आवर शॉप. Then you will face problem. So for every transaction there should be verifiable documents. Then only the objectivity concept can be ascertained. Objectivity concept का मतलब ये है कि all the transaction, business transactions or all the accounting transactions should be done, all the accounting should be done in an objective manner. Objective manner, that should be related to the objective of the business. It should not be with any sort of personal bias. जो accountant है, he should be free from all sort of personal bias. He should not cheat. There should not be any things to hide, right? Unnecessary information should not be there. What is required should be there in the accounting information. That is known as objectivity concept.
Then there are three important conventions, accounting conventions. Accounting conventions are also sort of principles. You can say they are guidelines. They are also accepted everywhere, and we follow them because of general agreement between everyone follows it, so we also follow. However, they are not so important as accounting concepts, sorry. However, they are not so important as accounting concept. Accounting concepts should be properly, strictly followed. Accounting conventions can be somehow, there are some relaxations, but you will find that they also have a lot of importance. Number one is convention of full disclosure. क्योंकि इसमें ना रिलैक्सेशन बहुत है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इन कन्वेंशंस में, कितना फॉलो करना है उसे और हाउ मच इज करेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि अकाउंटिंग करते वक्त कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए. अब ये कन्वेंशन जो है हालांकि बनाया गया है सो दैट देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, बट it is also very much clear that no business would like to disclose each and every information. कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना बिजनेस की जो कि वो नहीं बता सकते या नहीं बताना चाहेंगे. अब कौन सी बात नहीं बताना चाहेगा कौन सा बिजनेस, it depends upon business to business. Therefore these conventions are very very flexible. These conventions can be used according to your own convenience and acceptability. So principle of full disclosure या convention of full disclosure says that accounting में nothing should be kept hidden. All necessary required information should be revealed, should be told to the interested users. कौन सी इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड या जरूरी है रिवील करना, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी ऐसी जानकारी आप नहीं छुपाएंगे जिससे कि यूजर्स का डिसीजन चेंज हो सकता हो. व्हाट इज द मटेरियल इंफॉर्मेशन, आप किसको कहेंगे इनकी मटेरियल इंफॉर्मेशन है विच शुड नॉट बी हिडन. तो आप मान लीजिए आप बिजनेस है और आप पे कोई केस चल रहा है, किसी ने आप पे केस कर रखा है, यू आर फाइटिंग दैट केस इन द कोर्ट. अगर आप ये इंफॉर्मेशन छुपाते हैं सो कुछ लोग आपके साथ जो है डील कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ये बात बताते हैं वही लोग हो सकता है कि अपनी डील अपना कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कैंसिल कर दें. इन्वेस्टर्स आपको पैसे ना लगाएं आप, या क्रेडिटर्स आपको, सप्लायर्स आपको सामान उधार ना बेचें. So this information will be considered very very material because this has the capability of changing the decision of the next party. बात समझ में आई? ऐसा कोई भी डिसीजन जिससे कि नेक्स्ट पार्टी आपके साथ अपने डिसीजन को लेके सोच विचार करे या चेंज करे, उसको माना जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और उसको आपने रिवील करना चाहिए. अब छोटी मोटी दूसरी बात है जिससे कि क्रेडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, ये बात बताना जरूरी नहीं है. आपने अपने यहाँ वैकेंसी निकाल दी है, आप जो है हफ्ते में 6 दिन के बजाय 7 दिन काम लेते हैं लोगों से, इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इंफॉर्मेशन मे नॉट बी सोन. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. इसलिए उन्होंने कहा ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड which has the capability of changing the decision of the interested users या parties. This is known as
concept of full disclosure, which has a very wide range. It depends upon your own, it depends upon your business to business कि what they reveal. खास करके इसमें बात होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की. कंटिंजेंट का मतलब होता है डाउटफुल लाइबिलिटी. अगर आपकी कोई डाउटफुल लाइबिलिटी है तो उसके बारे में जरूर बताइए, लेकिन साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना, देयर इज एन एक्सेप्शन दैट डिस्क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डज नॉट मीन डिस्क्लोजिंग ऑफ और रिवीलिंग ऑफ योर बिजनेस सीक्रेट्स. आप अपने बिजनेस सीक्रेट्स नहीं बताएंगे, बिजनेस टैक्टिक्स नहीं बताएंगे, बिजनेस के मेथोडोलॉजी नहीं बताएंगे. आप उतनी ही बात बताएंगे जितनी जरूरी है. आई थिंक आई एम क्लियर. और एग्जांपल दें आपको, या समझ में आ गया? सर आ गया. कि क्या बताएंगे भाई. जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे सारी बात बताएंगे अपनी, तो सारी बात बताएंगे का मतलब क्या है कि अपने सीक्रेट्स थोड़ी बताएंगे, अपने प्लान्स थोड़ी बताएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव थोड़ी बताएंगे, अपना सीक्रेट एम थोड़ी बताएंगे. आप वही बात बताएंगे जिसका मुझसे कोई संबंध हो, जिसका मुझसे कोई लिंक हो, जिसका मुझसे जो भी हमारा बिजनेस रिलेशन है उस पर कोई फर्क पड़ता हो. बस आप वही बात बताएंगे. यू नीड नॉट टेल मी योर बिजनेस सीक्रेट्स. सो जो इंफॉर्मेशन आपको बतानी है वो कैसी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया. इट शुड हैव द फीचर या पावर टू चेंज द डिसीजन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी. क्योंकि जो दूसरा कन्वेंशन है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है. कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी. कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी convention of materiality. Convention of materiality is an exception to convention of full disclosure. उसका exception है ये. Exception. कैसे एक्सेप्शन है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग नो सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंट और वेरी लेस इफेक्ट, और आइटम्स और इंफॉर्मेशन विच इज इररेलेवेंट टू द यूजर, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. ये कह रहे हैं कि सब कुछ डिस्क्लोज मत करिए. Whatever is not relevant to the user of accounting information, whatever is not significant, whatever is unimportant, it should not be disclosed to the users. Only the material information which is must, which is significant, which is required by the interested users, that should be disclosed. आप उसे उतना ही बताइए जितना कि उसको जरूरत है सामने वाले को. उसको वही इंफॉर्मेशन दीजिए जिसकी उसको आवश्यकता है. नीड नॉट टेल हिम अबाउट अदर थिंग्स which are not required by him or her, which are not necessary for him to know. आपको सप्लायर्स सामान देते, उधार सामान देते, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप उनके पैसे वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. आप उन्हें बताएंगे हम कर पाएंगे, बिकॉज हमारा जो है इस तरीके से जो कैश की पोजीशन है वो ये रहती है, और 2 महीने बाद हम आपको पेमेंट कर पाएंगे क्योंकि 2 महीने बाद हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी होगी. दैट्स ऑल. आपको उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि आपका कैश कहां से आएगा. आपको उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप जो है किस किस तरीके से कहां से पैसे अरेंजमेंट करेंगे, या
आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपके पास कौन कौन सी असेट्स हैं, because it is not required. He is only interested to know whether his money will be repaid to him or not. That you have given him assurance, yes, because I will get the amount in next 2 month. 2 month के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. If you want the surety, तो वो गारंटर आप उसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कोई. But need not tell him about those things which are not relevant to him, which are not related to him, which is not required by him. आपसे अगर नाम पूछ रहे हैं आपका, तो आप बताएंगे कि मेरा नाम ये है, बस. आपको उसमें फिर और चीजें बताने की जरूरत नहीं है. ये बता सकते हैं कि नाम आपका किसने रखा, चलिए ठीक है, पता है पेरेंट्स ने रखा. आप उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि घर में कौन है, भाई कितने हैं, पापा की इनकम कितनी है. दिस इज unnecessary, irrelevant information. Only the material information, that is to say, material information are those information which are capable of making changes in the decision of the interested users, which can influence the decision of the investor or the creditor or the supplier of goods or anyone associated with the business. और ऐसा भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन किसी एक बिजनेस के लिए मटेरियल हो सकती है, दूसरी के लिए नहीं हो सकती है. सो इट शुड आल्सो डिपेंड अपॉन द अकाउंटेंट शुड एज्यूम द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन. हमारे लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सामने वाले के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको ये देखना होगा कि जो इंपॉर्टेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो दूसरे के डिसीजन को इफेक्ट करने वाली है अगर, तो यू शुड डिस्क्लोज इट. अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर को फॉलो करते हुए यू शुड नॉट डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग. हालांकि प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर भी कहता है यू हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, बट मटेरियल कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है ओनली द मटेरियल इंफॉर्मेशन. इसमें ज्यादा जोर इसमें दिया गया है कि क्या नहीं बताना है. क्या नहीं बताना है? इनसिग्निफिकेंट, इनरेलेवेंट, अनइम्पॉर्टेंट or transactions or anything which is not of much importance that can affect the decision of the party. All those information should not be disclosed. All those information should not be revealed. I hope it is sufficient. Both principle convention of full disclosure and convention of materiality. Last for today. Tomorrow we will finish this chapter. Very important thing आइए से, convention of conservatism or prudence. Excuse me, sir. हाँ, Sir, what is the meaning of contingent liability? who is asking? So, Supreet Kaur. Contingent liability तो बताया था मैंने अभी. Contingent liability means doubtful liability. Doubtful, जिसके बारे में ये अभी श्योर नहीं है whether we will have to pay it or not. आपका कोई केस चल रहा है, मान लीजिए कोर्ट में, कंपनसेशन का कोई केस है, क्लेम का कोई केस है, तो आप तभी तो पे करेंगे जब आपको उसकी केस हार जाएंगे. अगर आप केस हार जाएंगे तो यू विल हैव टू पे. अगर आप केस जीत जाएंगे तो यू विल नॉट हैव टू पे. क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करनी है आपने, उन्होंने क्या रखा है आपसे, इतने टाइम तक पेमेंट कर देंगे तो आपको इतने पैसे देने हैं, इतने टाइम के बाद करेंगे तो इतने पैसे आपको जो है ज्यादा देने हैं, या इससे पहले दे देंगे तो आपको और कम देने हैं. तो कितने देने डिपेंड्स अपॉन व्हेन एंड व्हाट कंडीशंस यू विल पे. तो कितने पैसे की पेमेंट करनी है, इट इज नॉट श्योर. दीज टाइप ऑफ लाइबिलिटीज आर नोन एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. Okay, sir. Okay, last for today, convention of prudence, conservatism or prudence. Convention of conservatism or prudence. Convention of conservatism or prudence.
This is a convention which is very important for all type of business organizations, and it is also applicable to human beings in personal also. It says that all the anticipated losses in future, anticipated means जिसको आप पहले से महसूस करते हैं या पहले से आप जो है आपको पता होता है, all the anticipated losses in the future means contingent हुए वो, they, you can also call them contingent. All the anticipated or contingent or probability है जिनकी कि आगे हो सकते हैं losses, that all those losses should be recorded in the books of account and provisions should be made against them in advance. Provisions मतलब उनके लिए पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके रखिए, कुछ प्रोविजंस मेंटेन करके रखिए, कुछ पैसे बचा के रखिए. All those losses which you feel can occur in the future, those should be recorded and provisions should be made against them for them, and all the anticipated profits or gains should be ignored. should be ignored. अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट लगता होगा तो अभी से उसे रिकॉर्ड मत करिए, वेट फॉर इट. लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई लॉस हो सकता है फ्यूचर में, अगर आपको लगता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लॉस, देन रिकॉर्ड इट, और उसके लिए अभी से प्रोविजन भी मेंटेन करके रखिए, कुछ पैसे बचा के रखिए, कुछ रिजर्व बना के रखिए, ताकि अगर वो लॉस हो तो आपके पास अभी से उसके लिए तैयारी हो. दैट टाइम दैट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसलिए बिजनेसमैन बहुत सोच समझ के पैसे लगाते, फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसके लिए पैसे बचाते हैं, डिफरेंट रिजर्व्स क्रिएट करते हैं. It is the policy of playing safe business or doing safe business. It is the policy of playing safe. This convention is the policy of doing safe business. We follow this principle or convention, we are always safe. क्योंकि हमारे पास, भाई आप बाहर निकल रहे हैं घर से और आपको ऐसा लग रहा है कि बरसात हो सकती है, तो आप छाता लेके निकल रहे हैं. लग रहा है आपको ऐसा, आपको एक सिक्स सेंथ कह रहा है कि शायद बारिश हो जाए, तो आपने क्या करा, छाता लेके आप चले गए. अगर बारिश होगी तो आपके पास छाता है, और अगर नहीं हुई तो भी तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो भी कोई नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर आप इसका उल्टा सोच लें कि नहीं नहीं होगी नहीं बारिश, जो लॉस है आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, जो बारिश होने की संभावना है यू आर जस्ट नेगेटिंग इट, तो मीन्स अगर होगी तो फिर आपको जो है उसका लॉस झेलना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा आपको. तो इसलिए whenever there is a possibility of any loss in future, we should record it immediately and we should make provisions against it, for it. उसके लिए हमें provisions भी बनाने चाहिए. This is known as principle of conservatism or convention of conservatism. इसीलिए कई बार हम अपनी assets को lower value में शो करते हैं, लाइबिलिटीज को थोड़ा बढ़ा के शो करते हैं ताकि हमें डबल फायदा हो. असेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम शो कर रहे हैं लेकिन है ज्यादा. आपके पास कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी है, उसकी वैल्यू आपने थोड़ी लोअर शो कर रखी है बैलेंस शीट में, है ज्यादा की, मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है. और कोई लाइबिलिटीज वगैरह है जो कम है, आपने ज्यादा शो कर रखी है, तो आपको उसमें डबल फायदा है. दोनों तरफ से आपके पैसे जो है बच रहे हैं. असेट्स को जब आप मार्केट वैल्यू में करेंगे तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी, जहां पैसे देने हैं वहां कम देने पड़ेंगे. इट मींस यू विल बी इन डबल प्रॉफिट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बहुत सारे पढ़ लिए हमने आज, थोड़े रह गए इसमें और 3-4 कॉन्सेप्ट्स. वो 3 कॉन्सेप्ट है मेन, वो आपको जो है कल एक्सप्लेन करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग इट. इट इज प्योरली लेक्चर क्लास, थ्योरेटिकल क्लास है, एंड आई होप आई एम नॉट क्या कहते हैं उसे, बीइंग वेरी, क्या कहते हैं, मेकिंग इट इंटरेस्टिंग, नॉट वेरी बोरिंग. बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए क्लास ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर यू, एंड आई होप वी आर डूइंग
इट प्रॉपरली, हम जो है इसको ठीक से कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। यही चैप्टर्स हमने पिछले साल भी पढ़ाए हैं, हमारे पास पिछले साल के भी इसके वीडियो है, बट आई एम नॉट सेंडिंग यू दोज वीडियोज बिकॉज पिछले साल जब हमने पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था हमें याद नहीं है, कैसे पढ़ाया था, इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया था, बट दे मे बी इन सम डिफरेंट लैंग्वेज और विद डिफरेंट एग्जांपल्स। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इन द आई हैव सेंड यू माय यूट्यूब चैनल MANESSTHAPA एंड 1006। तो जब आप उस पे जाएंगे और बहुत पीछे जाएंगे आप, तो आपको उसमें ये वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करके 1 2 3 पार्ट्स में होंगे वो, हर रोज 2 2 3 3 ऐसे ही सारे चैप्टर। अब आगे को जितने चैप्टर है सभी चैप्टर्स के वीडियोज आपको उसमें भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जो पढ़ाए थे, और इस बार जो आपको पढ़ा रहे हैं दोज आर आल्सो अवेलेबल नाउ। सो सब्सक्राइब दो चैनल एंड जब भी आपको टाइम मिलता है, इफ यू वांट देन यू कैन go through them. So come back for the next class. Till then, next class कौन सी है आपकी? इकोनॉमिक्स। Okay, okay. Take your class. Thank you.